باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خیریت سے ہیں آپ سب لوگ؟ جی الحمدللہ۔ آواز آ رہی ہے؟ غنچہ فاطمہ، سبیکہ، سیدہ گبرانی میم، معصومہ میم؟ جی آگا جی آپ الحمدللہ۔ آپ ٹھیک ہیں؟ ایک منٹ بس۔ جی بات چل رہی تھی کس چیز کے بارے میں؟ جی غلام علی اصغر، شارب، شراغ اور فرقان، فعل مضاعف کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی۔ فعل مضاعف بتایا کہ فعل مضاعف جب فعل مضاعف ہو یعنی جس کا عین الفعل اور لام الفعل، فعل مضاعف کسے کہتے ہیں؟ جس کا عین الفعل اور لام الفعل ایک جیسے حرف ہوں۔ کیوں میں نے عین الفعل اور لام الفعل کہا؟ کیونکہ دو ایک جیسے حرف ایک جگہ فاعل فعل عین الفعل کی جگہ بھی تو ہو سکتے ہیں۔ تو کیا کہا تھا؟ عربی میں کوئی ایسا فعل ملتا ہی نہیں کہ جس کا فاعل فعل اور عین الفعل ایک جیسا ہو۔ اسم میں مل جائے گا آپ کو، جیسے اسم آپ کو مل جائے گا ددن، ٹھیک ہے، فاعل فعل عین الفعل دیکھیے ایک جیسے ہیں، یا ممدن، ممدن، ٹھیک ہے، نہیں ممد اسم ہے، ٹھیک ہے، اسم میں آپ کو مل جائیں گے کہ جس کا فاعل فعل اور عین الفعل ایک جیسا ہو، لیکن عربی زبان میں کوئی فعل ایسا نہیں ملتا کہ جس کا فاعل فعل اور عین الفعل ایک جیسا ہو۔ سمجھ رہی ہیں معصومہ میم، سیدہ گبرانی میم، غنچہ، جی آگا سبیکہ؟ فعل عربی زبان میں کوئی ایسا فعل نہیں ملتا کہ جس کا فاعل فعل اور عین الفعل ایک جیسے ہو، ایک جیسا حرف ہو۔ ہاں عین الفعل اور لام الفعل ہو ایک جیسا ہو تو بہت مل جائیں گے، مددا، مرہ میں مر، فرہ، کرہ، اور جتنے مل جائیں گے جس کا عین الفعل اور لام الفعل ایک جیسا ہو۔ لہٰذا اگر فعل مضاعف لفظ آئے تو یہ سمجھنا کہ فعل مضاعف وہ فعل ہے جس کا عین الفعل اور لام الفعل ایک جیسے حرف ہوں۔ بتایا تھا کہ فعل مضاعف، فعل اگر مضاعف ہے تو ادغام ہوتا ہے، کلمہ اگر مضاعف ہوتا ہے تو ادغام ہوتا ہے۔ ابھی ادغام کہیں واجب ہوتا ہے، کہیں جائز ہوتا ہے، کہیں منع ہوتا ہے۔ فعل ماضی میں بتایا تھا کہ 5 صیغوں میں ادغام، شروع کے 5 صیغوں میں ادغام واجب ہوتا ہے۔ کیا تھا اس میں؟ مددا۔ کیوں واجب ہے بتائیے، آپ بتائیے سبھی کا، کیوں واجب ہے ادغام؟ سبھی کا؟ جی کیونکہ جی اس طرح سے کہ مطلب پہلے حرف کو ادغام کیوں حذف کر واجب کے ہے؟ نہیں یہاں پر ادغام کیوں واجب ہے فعل ماضی کے 5 صیغوں میں؟ جی کیونکہ دو حرف ایک جیسے ایک جگہ ہو۔ تو وہ تو یہاں بھی ہیں، وہ تو یہاں بھی 2 حرف ایک جیسے ایک جگہ ہیں، دیکھیے ہیں یا نہیں؟ وہ تو یہاں بھی ہیں، جی یہاں بھی ہیں، جو بات آپ کہہ رہی ہیں وہ تو یہاں بھی ہیں، لیکن یہاں ادغام تو نہیں ہو رہا۔ آگا اس وجہ سے کہ دو کیونکہ حرف، ضمیر متصل، ہاں اس میں ضمیر متصل ہے۔ نہیں یہ ضمیر تو معلوم ہے متصل آپ کو، چلیے معلوم ہے کہ یہاں پہ یوں منع ہے، جی لیکن واجب کا کیوں نہیں پتا کہ واجب کیوں ہے وہاں؟ واجب اس لیے آگا کہ 2 حرف ایک جگہ ہیں اور یعنی فاعل فعل پہلا، مطلب کیا بولتے ہیں، جی پہلا والا حرف اور وہ نہیں ہے، کیا نہیں بولیں، فاعل فعل کی جگہ جی اگر سے ڈال فرقان آپ بتائیے کیوں پہلے فعل ماضی کے 5 صیغوں میں ادغام واجب ہے؟ فعل ماضی میں انہوں نے کہا 5 صیغوں میں ادغام واجب ہے، مددا کو مدہ کریں گے، کیوں واجب ہے؟
ہیں تو مشکل یہاں پہ تو یہاں نہیں ہو سکتی. مدد تو مددنا میں دو دال ایک جیسے وہاں بھی آسانی کے لیے آپ ادغام کر سکتے ہیں. اگر ایسی بات ہے تو وہاں کیوں نہیں کر رہے؟ یہ جو تم نے جواب اتنا گدھے والا بیوقوف والا دیا ہے، آپ نے بتا دیا آپ کتنے بیوقوف ہو اتنی سی یہ بات کہہ کے کہ آسانی کے لیے. تو آسانی تو آپ چھٹے سے 12ویں صیغے میں بھی کر سکتے تھے، 14ویں صیغے میں آسانی. وہاں کیوں نہیں کی آسانی؟ کمال ہے، میں نے غلط کیا. مجھے ادغام کی بحث لکھوانی نہیں چاہیے تھی. کم سے کم یہ تو ہو جاتا کہ میں نے لکھوائی نہیں تھی اس لیے یاد نہیں ہے. ورنہ بتائیے میں نے کیا نہیں لکھوایا. واجب ادغام کی کہاں کہاں ادغام واجب ہے نہیں لکھوایا میں نے. کہاں کہاں ادغام جائز ہے میں نے نہیں لکھوایا. کہاں کہاں ادغام منع ہے نہیں لکھوایا میں نے. آغا ہم بتائیں؟ جی بتائیے. دو یعنی واجب ہونے کے لیے دو شرط ہونی چاہیے. پہلا یہ کہ ادغام واجب دو جگہ پہ ہوتا ہے. مماثل حروف میں ادغام دو جگہ ہوتا ہے. پہلا دو ایک جیسے حرف میں پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو تو واجب ہے. یا اگر دونوں متحرک ہے تو پہلا جائز التسکین ہو تو ادغام واجب ہے. یا مددہ میں دو حرف ایک جیسے ایک جگہ ہے دونوں متحرک ہے لیکن پہلا والا جائز التسکین ہو سے سکون دینا جائز ہے اس لیے واجب ہے. جی جی یہی بولنا چاہیے. دو کیونکہ جائز التسکین کیوں ہے اور یہ جائز التسکین کیوں ہے یہ سوال اگر کوئی کرے آپ سے تو کہا جائز التسکین اس لیے ہے کیونکہ نہ تو یہ کلمے کا پہلا حرف ہے اور نہ ہی یہ مدغم فی ہے اس لیے جائز التسکین ہے. کیونکہ اگر دو ایک جیسے حرف میں سے پہلا حرف اگر مدغم فی ہے یا کلمے کا پہلا حرف ہے تو لازم الحرکت ہیں وہ ان کی حرکت لازمی ہوتی ہے. سکون دینا انہیں جائز نہیں ہوتا ہے. لہذا یہ ان دونوں میں سے نہیں ہے تو یہ جائز التسکین ہے. اور جب جائز التسکین ہے تو واجب جو ادغام کے موارد لکھوائے تھے اس کی شرط پوری ہو رہی ہے کہ دونوں حرف اگر متحرک ہے تو پہلا جائز التسکین ہو تو جائز التسکین ہے لہذا ادغام واجب ہے. سمجھ میں آ گیا؟ تخفیف. تو پہلے سے لے کے 5 صیغوں تک ساری شرائط پائے جا رہے ہیں. دیکھیے ایک منٹ دکھا دوں. دیکھیے اب میں آپ کو دکھاؤں. پہلے بغیر ادغام کے میں حالانکہ جائز نہیں ہے وہ منع ہے یعنی ادغام کے بغیر لانا ہو ادغام واجب ہے لیکن میں احتیاطاً آپ کو ایسی کر کے دکھا رہا ہوں. مددا مددا مدد دو. ٹھیک ہے مثال ایسی مددت مددتا 5 صیغے ہیں نا. اب دیکھیے پانچوں صیغوں میں آپ جب دیکھیں گے مددت مددت مددتا مددتا 5 صیغے ہیں. دیکھیے ادغام دو ایک جیسے حروف مماثل حروف میں ادغام کے واجب ہونے کی شرط کیا تھی؟ 2 شرطیں تھیں. یا پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو تو وہ تو ہے نہیں یہاں. یا دونوں اگر متحرک ہے تو پہلا جائز التسکین ہو. جائز التسکین اسے ساکن کرنا جائز. اور ساکن کرنا کب جائز ہوگا؟ 2 جگہ کو چھوڑ کے باقی جگہ آپ ہر جگہ کو ساکن کر سکتے ہیں. جب دو ایک جیسے حرف میں پہلا والا حرف نہ تو مدغم فی ہو تو یہاں مدغم فی نہیں ہے اس میں کوئی ادغام ہوا نہیں ہے اور کلمے کا پہلا حرف بھی نہیں ہے لہذا یہ جائز التسکین ہے. جب جائز التسکین ہے سکون دینا اس کو جائز ہے. تو اب بتائیے ادغام ہو گیا نہیں ہو گیا؟ ہو گیا نہیں ہو گیا. مدہ 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 مدو مدو مدت مدت مددتا مددتا. ٹھیک ہے دیکھو شرطیں پوری تھی واجب ادغام کی یہاں پہ اس لیے 5 صیغوں میں ادغام واجب ہے. اور یہ بات تو ادغام کی بحث نہیں بتائی تھی تب بھی میں نے بتائی تھی. ادغام کی ساری بحث لکھوانے سے ہٹ کے بھی میں نے یہ بات بتایا تھا کہ ادغام اور خود انہوں نے کتاب والوں نے کہ 5 صیغوں میں ادغام اس لیے واجب ہے کہ دونوں متحرک ہے پہلا جائز التسکین ہے اور باقی میں منع کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں دوسرا حرف ساکن ہے ضمیر رفیع متحرک کی وجہ سے. اب دیکھیے مددنا مددنا چھٹا صیغہ کیا ہے؟ مددنا. پھر مدد تا ٹھیک ہے مدد تما مدد تم. ابھی دیکھیے یہاں پہ سب جگہ لام الفعل دوسرا والا حرف 2 ایک جیسے حرف میں دوسرا والا حرف ساکن ہے اور اس کا سکون ضمیر رفعی متحرک کی وجہ سے ہے. اور آپ نے ادغام کے منع ہونے کے مقامات 7 گنائے تھے یاد ہے؟ ان میں سے ایک یہ تھا کہ دوسرا حرف ساکن ہو 2 ایک جیسے حرف میں دوسرا ساکن ہو اور اس کا سکون ان ضمیروں رفعی متحرک کی وجہ سے ہو تو ادغام منع ہے. اس لیے 6 کے بعد 6 سے لے کے آخر تک ادغام ماضی میں
मना है। समझ में आया क्यों वाजिब है 5 में, क्यों मना है बाकी में? जी आगा। गुलाम अली पैर क्यों ला रहे हो ये नहुसत की अलामत? ठीक है, घमंड की अलामत होती है ये, पैर हिलाना बैठ के कुर्सी पे। ठीक है, समझ में आया आप लोगों के नहीं कि इदगाम माजी के 5 सिगों में क्यों वाजिब है? वरना आप ये याद कर लेंगे कि भाई माजी की फेल मुजाफ, फेल अगर मुजाफ है तो उसके माजी में 5 सिगों में इदगाम वाजिब है, बाकी में मुमतन है। फेल मुजारे में अगर मुजाफ है तो 2 सिगों 6 और 12वें में इदगाम मना है, बाकी में वाजिब है। फेल अम्र में 2 सिगों में मना है 6 और 12वें में, 1, 4, 7, 13, 14 में जायज़ है, बाकी में वाजिब है। इतना याद करके आप सुनाने लगे किसी को मिसाल के तौर पर, सामने वाला जो है वो थोड़ा समझदार है कि देखूं इसे याद भी है, बस ऐसे रटा हुआ है, वो पूछ लेगा आपसे कि क्यों वाजिब है 5 सिगों में, क्यों मना है बाकी में, मुजारे में क्यों 2 में मना है बाकी में वाजिब है, वो पूछ लेगा आपसे, तो उससे सब समझ लेगा आपको कितना पढ़ा है आपने, या रटा है या याद किया है। ठीक है, तो पता होना चाहिए 5 सिगों में वाजिब है तो क्यों, क्योंकि वाजिब के शराइत पूरे, इसीलिए तो मैंने आपको इदगाम की बहस लिखवाई थी कि जब आपसे कोई पूछे या खुद आपके जहन में सवाल उठना चाहिए कि इन्होंने कहा कि फेल माजी में 5 सिगों में वाजिब है बाकी में मना है, तो क्यों वाजिब है 5 सिगों में? इसलिए मैंने वो इदगाम की पूरी बहस लिखवाई थी कि इदगाम कहाँ कहाँ होगा, कब वाजिब है, कब जायज़ है, कब मना है। तो बताया था वाजिब कब होगा, अगर 2 एक जैसे हर्फ हैं तो 2 जगह वाजिब है, या तो 2 में से पहला साकिन दूसरा मुतहर्रिक हो, या अगर दोनों मुतहर्रिक है तो पहला जायज़ तस्कीन हो। और मुतकारिब हुरूफ में क्या कहा था? अलिफ लाम का इदगाम हुरूफ शमसी में और नून साकिन का इदगाम यरमलून में वाजिब है। ठीक है, तो ये बहस थी इदगाम। मुजारे में 2 सिगों में मना है, कौन कौन से में? यम 6 और 12 यमदुदना, और इसी को समदुदना कर दो मिसाल के तौर पर, तम दुद ना। क्यों मना है यहाँ पर इदगाम? क्यों इदगाम मना है? क्योंकि 2 एक जैसे हर्फ तो हैं, और लेकिन दूसरा वाला हर्फ साकिन है और उसका सुकून ज़मीर रफ़ी मुतहर्रिक से की वजह से। और आपको याद है मुजारे में अलामत रफ़ 5 सिगों में ज़म्मा, 7 सिगों में नून अराबी, 6 और 12वां सिगा मबनी होता है। इनमें जो नून है वो ज़मीर है, जमा मुन्नस की ज़मीर है, तो ज़मीर है नहीं है ये, तो इस ज़मीर की वजह से सुकून है, इसलिए इदगाम मना है। मना के मकामात मैंने आपको लिखवा दिए कहाँ कहाँ इदगाम मना है, उनमें से एक ही। बाकी में वाजिब है, वही वजह है जो माजी में वजह थी, क्या था? यम 2 2, सारे इस 2 को छोड़ के बाकी सब में आप देख लीजिएगा दोनों मुतारिक है, पहला जायज़ तस्कीन है, लिहाजा इदगाम वाजिब है। ठीक है, और आपको ये मालूम ही है कि जब हम इदगाम के वाजिब की जब शर्तें आएंगी, दोनों मुताहर्रिकों पहला जायज़ तस्कीन हो, तो 2 मकामात पर उसकी हरकत माक़बल को दे देते हैं। ठीक है, नहीं तब जब उससे पहला वाला हर्फ सही हो और साकिन हो, ठीक है, या फिर वो फाउल फेल होता या बहरहाल, तो ये उन मकामात में से इसकी हरकत माक़बल को दी गई क्योंकि इसका माक़बल हर्फ सही भी था, साकिन भी था। क्या बनाए? यमुद 2, एक इदगाम से कर दीजिए, हो जाएगा, इदगाम करके एक मखरज से हो जाएगा यमुद। तो वाजिब होने की क्यों वाजिब है इदगाम? इल्लत, सबब, वजह पता लग गई मुजारे में, और मना होने की 2 सिगों में मना है, उसकी दलील वजह पता लग गई। वही वजह जो माजी में वाजिब होने की थी, मुजारे में भी वाजिब होने की वही वजह है, और अम्र में भी वाजिब जहां जहां है वहां भी वही वजह है। माजी में जो बाकी सिगों में मना होने की दलील थी, वजह थी, वही 6 और 12वें में मुजारे में है दलील वजह मना होने की, और वही अम्र में भी। अम्र में अलबत्ता 1, 4, 7, 13, 14 5 सिगों में जायज भी है, उन 5 मकामात पर जायज है, यानी आप बगैर इदगाम के भी ला सकते हैं, इदगाम के भी। क्यों भाई, क्यों क्यों क्यों? आपके जहन में सवाल नहीं उठा कि वाजिब और जायज का तो आपने बता दिया, क्यों वाजिब है, क्यों वाजिब और मुमतने का, कि क्यों वाजिब है? वाजिब की शर्तें पूरी थी। क्यों मना है? क्योंकि वो ये वजह उसकी मौजूद थी मना होने की। यहाँ पर ले यमदुद में जब मुजारे मजदूम हो या अम्र हो तो 5 सिगों में, क्योंकि जब ये आएगा लाम तो आखिर में जज्म आएगा, इन 5 सिगों में अलामत जज्म सुकून होता है नहीं, तो जब ये साकिन है तो इदगाम यहाँ जायज क्यों है? पूछिए, या पता है? गुलाम अली क्यों जायज है यहाँ? क्यों जायज है?
علی اصغر کیوں جائز ہے؟ منع کیوں نہیں ہے یا واجب کیوں نہیں ہے؟ چراغ کیوں جائز ہے؟ کہ آن لائن کسی کو پتا ہے کیوں جائز ہے؟ آغا اس کے بعد وہ ضمیر متصل نہیں ہے. احسن، تھوڑا تو خود بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی بعض باتوں کی، بعض باتیں پیچھے کے باتوں سے پتہ لگ جاتی ہیں. کہا کہ پیچھے یہ کہا تھا کہ منع ہونے کی دلیل کیا تھی؟ ادغام کے منع ہونے کی ماضی اور مضارع میں وجہ کیا تھی؟ کہ دوسرا حرف ساکن ہے لیکن ساکن اس ضمیر رفیع متحرک کی وجہ سے ہو. تو یہاں ضمیر رفیع متحرک کی وجہ سے ساکن نہیں ہے، اس لیے جائز ہے، اس لیے منع نہیں ہے. ادغام اس لیے منع نہیں ہے. کیوں منع نہیں ہے؟ کیونکہ دوسرا حرف ساکن تو ہے لیکن اس کا سکون ضمیر رفیع متحرک کی وجہ سے نہیں ہے. نہیں ہے لہذا جائز ہے، کر سکتے ہیں. جب ایسی جب منع ہونے کی شرط ہے نہیں، جب منع ہونے کی دلیل وجہ علت نہیں ہے تو جائز ہے. جی. واجب کیوں نہیں ہے؟ واجب اس لیے نہیں ہو رہا کہ نہیں، واجب اس لیے نہیں ہو رہا کہ مجزوم ہے نا، وہ مجزوم ہے. آخر بغیر آگے ہو رہا تو سمجھ میں آیا کیوں جائز ہے؟ کیونکہ اس میں دو جی ایک جیسے ان 5 صیغوں میں مضارع مجزوم اور امر میں دوسرا حرف ایک جیسے حرفوں سے دوسرا حرف ساکن ہے اور اس کا سکون کسی ضمیر کی وجہ سے نہیں ہے، لہذا جائز. آپ کہہ سکتے ہیں لے یمدد اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں لے یمدہ، لے یمدے، لے یمدو. یہ 3 حرکتیں کیوں دے سکتے ہیں؟ کیونکہ عین الفعل پہ ضمہ ہے. لیکن لے یفرہ، لے یفرہ میں 2 ہی دے سکتے تھے، ضمہ نہیں دے سکتے تھے. کیوں؟ کیونکہ بتایا تھا کہ عین الفعل پہ ضمہ نہیں ہے تو پھر اسے ادغام کرتے وقت اسے ضمہ نہیں دیں گے دوسرے حرف کو. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ پھر میں نے دہرا دی بار بار. وہ کام جو آپ مباحثے میں آپ کو کرنا چاہیے تھا وہ میں آپ سے مباحثہ کر رہا ہوں، دیکھ لیجیے. یہ مباحثے سے نہیں، ایسے ہی مباحثہ مطالعہ اسٹڈی کیا کریں کہ آپ دیکھیں کہ واجب کی شرطیں واجب ہے ادغام. مثال کے طور پر اس جگہ ادغام واجب ہے تو کیوں واجب ہے؟ انہوں نے ہمیں ادغام کی ساری بحث لکھوائی تھی تو اس میں دیکھیں کہ واجب میں سے اس میں سے کون سا مقام ہے یہاں. اچھا واجب کا، واجب کے لیے یہ چیزیں ہیں. جائز کا ہے، ممتنع کا ہے، اس کی دلیل. جائز کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں دوسرا حرف ساکن تو ہے لیکن ضمیر کی وجہ سے نہیں ہے، اس لیے جائز ہے. ٹھیک ہے، یہ بات تمام ہوگی. اب دیکھیے مثالیں دیکھیے. اب دیکھیں انہوں نے خود کہا یہاں پر بات کہ ماضی کے 5 صیغوں میں واجب ہے شروع کے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ بتایا تھا. دیکھیے یہ رہا، دیکھیے فعل مضاف جیسا کہ مقدمے میں گزرا کہ ادغام ہوتا ہے اس میں، لیکن بعض صیغوں میں فعل مضاف میں واجب ہے اور باقی میں ممتنع ہے. بعض میں جائز اور بعض میں ممتنع. یہ کہہ رہے ہیں ماضی کے 5 صیغوں میں شروع کے ادغام واجب ہے. کیوں؟ علت یہ رہی، زیرہ علت ہے، یہ وجہ سبب. زیرہ اس لیے کہ ابھی زیرہ کھانے والا زیرہ نہیں، علت ہے. زیرہ ہے نا اس لیے کہ حرف دوم متحرک، دوسرا حرف متحرک ہے اور حرف اول جائز التسکین ہے، اور پہلا حرف جائز التسکین ہے، اس لیے واجب ہے. وہ در بقیہ صیغہ، باقی صیغوں میں ماضی کے ممتنع بھی باشد ممتنع ہوگا. کیوں؟ زیرہ اس لیے کہ حرف دوم ساکن ہے اور اس کا سکون و سکونیان بجہت اتصال ضمیر رفع متحرک، اور اس کا سکون کس وجہ سے ہے؟ جہت وجہ اتصال برفع ضمیر رفع متحرک، ضمیر مرفوع متحرک کے اتصال کے سبب ہے اس کا سکون، لہذا ادغام منع ہے. اور آپ کو میں نے منع کے ادغام میں یہ مورد لکھوا چکا تھا. اب گردان دیکھیے، مدہ یعنی کھینچنا، اس کی گردان بروزن فعلہ. مدہ بروزن، یہ مدہ فعلہ کے وزن پہ کیوں ہے؟ کیونکہ یاد ہے آپ کو کہ جب حروف اصلی کا پتہ ہو، تجدید ہے اور ہمیں پتہ ہے حروف اصلی کون سے ہیں، تو وزن کو بغیر تجدید کے لائیں گے. مدہ فعلہ. اب گردان دیکھیے، فعل ماضی معلوم کی مدہ، اب یہ گردان دے دی. مدو، مدت، مدتا، مدد نہ، مدد نہ. اب پھر مدد نہ، اب یہاں سے ممتنع ہو گیا. مدد نہ، مددتا، مددتما، مددتم، مددتے، مددتما، مددتم، مددتو، مدد. فعل مجہول کیسے ہوگا؟ موددہ تھا نا، جی کیا ہوا؟ آپ کی آواز کٹ رہی، ابھی آپ کی آواز کٹ رہی تھی، ابھی صحیح ہو گئی. جی دیکھیے فعل مجہول فعلہ کے وزن پہ آتا ہے نا، ماضی کا ثلاثی مجرد سے.
तो जी, मोदेदा जी। मोदेदा तो वाजिब है इसमें भी। क्यों? देखिए दोनों मुताहर्रिक हैं और पहला जायज़ुत तस्कीन है, लिहाजा मुद्दा। ठीक है, मुद्दा मुद्दा मुद्दू मुद्दत मुद्दता मुदिदना फुइलना मुदिदना मुदिदतुमा मुदिदतुम मुदिदते मुदिदतुमा मुदिदतुन्ना मुदिदतो। मुजारे इदगाम दर दो सीगे जम मुन्नस मुजारे मुमतने। इदगाम जमा मुन्नस मुजारे के दो सीगों में, जमा मुजारे जमा मुन्नस के दो सीगों में मुमतने वो दर बकी सीगा और बाकी सीगों में वाजिब است। दलील इम्तना व वजूब हमान است। मना और वजूब की दलील वजह सबब वही है कि दर माजी गुफ्तशु जो माजी में बयान हो चुका। क्या थी वहां पे दलील वजूब? वाजिब होने की दलील वहां क्या बयान की कि दोनों हर्फ मुताहर्रिक है, पहला जायज़ुत तस्कीन है। लेकिन तस्कीन मना होने की दलील क्या थी कि दूसरा दो एक जैसे हर्फ में दूसरा साकिन है और उसका सुकून ज़मीर रफ़ी मुताहर्रिक की वजह से है। गर्दान देखिए यमुद्दो से मद्दा यमुद्दो यफ़उलो के वजन पे है, मी के शदो खींचता है। यमुद्दो यमुद्दाने यमुद्दूना वाजिब, तमुद्दो तमुद्दाने वाजिब। यमदुदना मना, तमुद्दो तमुद्दाने तमुद्दूना तमुद्दीना तमुद्दाने तमदुदना मना, अमुद्दो नमुद्दो बाकी में वाजिब। मुदारे मजहूल में आइए, युफ़अलो के वजन पे आता है ना, तो युम दे दो, युम दे दो, युम दे दो। देखिए दोनों हर्फ मुताहर्रिक है, पहला जायज़ुत तस्कीन है तो यहाँ भी इदगाम होगा। युम दादो, हाँ युम दादो युफ़अलो के वजन पे युम दादो, दोनों मुताहर्रिक पहला जायज़ुत तस्कीन हो जाएगा। युमद्दो युमद्दाने युमद्दूना तुमद्दो तुमद्दाने युमददना मना, तुमद्दो तुमद्दाने तुमद्दूना तुमद्दीना तुमद्दाने तुमददना मना, उमद्दो नुमद्दो। आप ये कहेंगे कि दो चार पांच सीगों में गर्दान खत्म कर दी, ये कैसे? नहीं, ये नुक्ते बता रहे हैं कि गर्दान बाकी तो सेम है, आपको मालूम ही है। यमुद्दो यमुद्दाने यमुद्दूना तमुद्दो तमुद्दाने, अब ये यमदुदना। अम्र ये कह रहे हैं दर सीगे ये चहार हाफ सीज दे चहार दे चार दे अम्र जायज़। इदगाम दर सीगा है ये चार हाफ सीज दे चार दे अम्र जायज़ है। इदगाम अम्र के इन पांच सीगों में जायज़ है। वो दर सीगा है ये शीशो दवाज दे मुमतने और सीगा 6 और 12 में मना है, वो दर बक़िया वाजिब और बाकी सीगों में वाजिब है। और दलील इम्तना वजूब हमानस के दर के गुज़ार, और मना होने की दलील और वाजिब होने की दलील वही है जो गुज़र चुकी। वाजिब होने की दलील क्या है? दो जैसे हर्फ हैं, दोनों मुताहर्रिक हैं, पहला जायज़ुत तस्कीन है। मना होने की दलील क्या है कि दूसरा हर्फ साकिन है एक जैसे हर्फ में से और उसका सुकून ज़मीर रफ़ी मुताहर्रिक की वजह से है। बचा जायज़ व दलील जवाज़ दर 5 सीगे, दर 5 सीगों में जायज़ होने की दलील क्या है? ईनस ये है कि हर्फ दुव्वम पे खातिर आमिल जज़्म या बिना कि वो जज़्म के आमिल की वजह से जिसने जज़्म दिया है लाम अमर ने, या बिना की वजह से साकिन हुआ है। समझ रहे हैं आप? ना कि किसी ज़मीर रफ़ी मुताहर्रिक की वजह से। लिहाजा रोशन है, ये बात वाज़ेह और आश्कार और रोशन है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। लिखे हुआ पे देख के आपको पता खुद ही लग जाएगा कि अगर इन 5 सीगे इन 5 सीगों में अगर बेखाहीम कि हम अगर इदगाम कुनीम अगर इन 5 सीगों में हम इदगाम करना चाहें तो बायद हर्फ दोम रा हरकत दें, क्योंकि हर्फ दोम तो साकिन है, तो इदगाम करने की सूरत में तो दूसरे हर्फ को हरकत देनी पड़ेगी, वरना इदगाम तलफ़्फ़ुज़ कैसे करेंगे आप? लिहाजा हरकत देनी पड़ेगी। हरकत, लेकिन हरकत आन उसकी हरकत मी तवानत हो सकती है फतहा या कसरा हो सकती है, और अगर ऐनुल फ़ेल पे ज़म्मा है तो फतहा कसरा ज़म्मा तीनों हो सकती हैं। बिनाबरीन लिहाजा दर मज़मूमुल ऐन अगर कोई फ़ेल ऐसा है जो मज़मूमुल ऐन है, यानी जिसके ऐनुल फ़ेल पर ज़म्मा है, तो 4 वजह उसमें 4 वजह जायज़ हैं। वह दर गैर आन इसके अलावा, यानी अगर ऐनुल फ़ेल पे ज़म्मा नहीं है, फतहा या कसरा है, तो 6 वजह जायज़ है, 3 वजह जायज़ हैं। 4 वजह कैसे जायज़ हैं? एक तो बगैर इदगाम के ले यम दूध, और 3 इदगाम से तीनों हरकतों के साथ। 4 हो गई नहीं हो गई? जी। और बगैर और अगर ऐनुल फ़ेल पे ज़म्मा ना हो तो 3 वजह हैं। एक बगैर इदगाम के ले या फिर रा नहीं ले या फिर बगैर इदगाम के ले या फिर, और 2 इदगाम के साथ ले या फिर रा ले या फिर रे, हो गई 3 सूरतें। अभी कह रहे हैं दर 5 सीगे आम्र हाजिर के 5 सीगों में दर सूरत इदगाम के वक्त हमज़ा अम्र में उफ्ताद, अम्र का जो हमज़ा है वो गिर जाएगा। मसलन आप तमुद्दो कीजिए, तमुद्दो मुज़ारे तमुद्दो क्या था? मुज़ारे हाजिर था ना, तो अम्र हाजिर क्या बनता? उमदुद,
दूध हमजा आया था, दूध बनता अमर हाजिर। लेकिन अगर आप दूध को इदगाम करेंगे तो मुद्दा करेंगे। क्यों करेंगे? हमजा क्यों गिरेगा? आप देखिए, इधर देखिए, गौर कीजिए जरा इस पे। अमर असल में क्या बनता? तमदूदों का दूध अलामत मुजारे की राजी ता, बाद वाला हर साकिन है, हमजा ले साकिन। ऐनुल फेल पे जम्मा था, हमजे को जम्मा दे दिया और आखिर को सुकून दे दिया। ठीक है, अब बताइए उमदुद हुआ। अब हम इदगाम करना चाहें, दो एक जैसे हरफ है, दूसरा साकिन है, लेकिन ज़मीर रफ़ी मुतहर्रिक की वजह से नहीं है, लिहाजा इदगाम जायज़ है। अब इदगाम अगर जायज़ तो याद है ना आपको, पहला वाले हरफ की हरकत माक़म को दी जाएगी कब? जब उसका माक़म या तो फाउल फेल हो या उसका माक़म हरफ सही या साकिन हो। तो जब हमने दाल की हरकत मीम को दे दी है, अब ये बताइए हमजा क्यों लाए थे हम? क्योंकि ये साकिन था इसलिए हमजा लाए थे, साकिन था। लिहाजा अब ये मुतहर्रिक हो गया, अब हमजे की कोई जरूरत ही नहीं है। अब इदगाम कर दीजिए मुद्दा, समझे? मुद्दा, मुद्दे, मुद्दो। और इदगाम के बगैर तो उमदुद है ही, इदगाम के बगैर उमदुद तो है, और उसमें हमजा है। तो आप कोई कहे कि इदगाम के बगैर तो हमजा है, इदगाम के बगैर हमजा नहीं है, ऐसा क्यों? तो आप कह दीजिएगा इदगाम के बगैर हमजा इसलिए है कि अलामत मुजारे गिराने के बाद फाउल फेल साकिन था बाद वाला हर्फ, इसलिए हमजा लाना पड़ा। लेकिन जब इदगाम करेंगे तो दो एक जैसे हर्फ में से पहले वाले हर्फ की हरकत तो उसको मीम को मिल गई, अब मीम मुतहर्रिक है, लिहाजा हमजे की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ रही है बात? गुलाम अली शारी समझ गए कि क्यों हमजा गिर जाएगा इदगाम के बाद? कह रहे हैं अम्र हाजिर के 5 सीगों में, आप कहेंगे अम्र हाजिर के 6 सीगे होते हैं, 5 क्यों? 5 सीगों में ऐसा क्यों? छठे में क्यों नहीं? क्योंकि छठा सीगा पहले अमर का पूरे का 12वां बैठेगा, और आपको मालूम है छठे और 12वें में मना है, इसका छठा 12वां सीगा बैठेगा। अभी कह रहे हैं कि 5 शुरू के 5 सीगों में अम्र हाजिर के इदगाम के सूरत में हमजा जो अमर का है वो गिर जाएगा, ज़ीरा इसलिए कि फाउल फेल में हरकत ऐनुल फेल की हरकत से मुतहर्रिक हो जाएगा। यानी ऐनुल फेल की दो एक जैसे हरफों से पहले वाला हर्फ ऐनुल फेल है ना, उसकी हरकत मीम को मिल गई है, फाउल फेल को मिल गई है, वह दीगर एहतियाजी पे हमजे नहीं, लिहाजा अब हमजे की जरूरत ही नहीं। सर्फ सीग़हाए अम्र या अज़्ज़ो, अज़्ज़ा या अज़्ज़ो, अज़्ज़ा के माना मालूम है क्या है? काटना। अज़्ज़ा उसने काटा, या अज़्ज़ो वो काटता है, कटखाना हो रहा है बिल्कुल पहले। अज़्ज़ा या अज़्ज़ो, मी गज़्ज़द वो काटता है, यफ़अलु के वजन पे है, यफ़अलु के, यफ़अलु यानी ऐनुल फेल पे ज़म्मा नहीं फतह है, अज़्ज़ा या अज़्ज़ो। अब इसके अम्र लाइए, या अज़्ज़ो को ले लाइए, ले या अज़्ज़, ले बगैर इदगाम के क्या बनेगा? ले या अज़्ज़। अब इदगाम कीजिए, ज़ुआत की हरकत ऐन को दे दीजिए, माक़बल हरफ सही भी है और साकिन भी है, ठीक है? ले या अज़्ज़, क्योंकि ऐनुल फेल पे ज़म्मा है नहीं है, तो इदगाम की सूरत में या फतहा दे सकते हैं, कसरा बस। ले या अज़्ज़, 3 सूरतें बनी। तो अब आपसे कोई कहे अज़्ज़ा या अज़्ज़ो से अम्र मालूम की गर्दान सुनाओ, तो आप क्या करेंगे? पहले सीगों को 3 सूरतों में पढ़ेंगे, ले या अज़्ज़ा, ले या अज़्ज़े, ले या अज़्ज़, यही कि ले या अज़्ज़, ले या अज़्ज़ा, ले या अज़्ज़े। फिर दूसरा ले या अज़्ज़ा, ले या अज़्ज़ू, ठीक है? ले तअज़्ज़ा, फिर आप उसमें आ जाएंगे 7वां सीगे में, फिर वही यही वाली सूरतें 3 आ जाएंगी, ये वाली, बस या की जगह ता लग जाएगी, हैं? किसमें? ले तअज़्ज़, ले तअज़्ज़ा, ले तअज़्ज़े। 5वां सीगा ले तअज़्ज़ा, और छठा सीगा ले याज़्ज़ना। छठे में तो आपको मालूम ही मना है, ले याज़्ज़ना। फिर अम्र हाजिर आ जाता है, एज़ाज़ बगैर इदगाम के, और जब इदगाम करेंगे ऐनुल फेल को, ऐन को जो है वो ज़ात की हरकत मिल जाएगी, तो हमजे की जरूरत नहीं, तो हो जाएगा अज़्ज़ा, अज़्ज़े, अज़्ज़ा, अज़्ज़े। एज़ाज़ काट तू एक मर्द, अज़्ज़ा, अज़्ज़े यानी काट तू एक मर्द, अज़्ज़ा तुम 2 मर्द काटो, अज़्ज़ू तुम सब मर्द काटो, ठीक है? बोलिए। फिर अज़्ज़ी, 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 अज़्ज़ी तू एक औरत काट, या तो हो जाएगा एज़ाज़ी या अज़्ज़ी, एज़ाज़ी हो जाएगा या अज़्ज़ी हो जाएगा,
अज़्ज़ा अज़ू, फिर एज़ज़ना, एज़ज़ना 12वां सीगा और अम्र हाजिर का छठा। 13वां सीगा लिआज़ज़, लिआज़्ज़ा, लिआज़्ज़े। 14वां सीगा लिनअज़ज़, लिनअज़्ज़ा, लिनअज़्ज़े। समझ में आया आप लोगों के? जी। अभी कह रहे हैं सर्फ सीगा है ये अम्र मालूम या फिर्रो से, ये क्योंकि ऐनुल फेल पे फतह की मिसाल दे दी थी, ऐनुल फेल पे कसरे की मिसाल भी दे दी है। फर्रा या फिर्रो, या फिर्रो फरार करता है या करेगा वो इमार। यफ़इलु के वजन पे हो जाएगा ले यफ़रिर, ले यफ़िर्रा, ले यफ़िर्रे, ले यफ़िर्रा, ले यफ़िर्रू, ले तफ़िर्रा। एक 4 में भी तो वही है ना बख्शी, चौथे सीगे में भी तो वही है ना, 1 4 7। ले तफ़रिर, ले तफ़िर्रा, ले तफ़िर्रे। फिर 5वां सीगा ले तफ़िर्रा, छठा ले यफ़रिर, मना है छठे में। फिर इफ़रिर, फिर्रा, फिर्रे, फिर्रा, फिर्रू, फिर्री, फिर्री। 10वें सीगे में थोड़ी कई सूरतें हैं, वहां पे मैंने 10वें सूरत उसमें सीगे में सूरतें बना दी थी, 10वें में नहीं है, तो वो तो फिर्री ही रहेगा। फिर्री, फिर्रा, फिर इफ़रिरना, इफ़रिरना, ले अफ़रिर, ले अफ़िर्रा, ले अफ़िर्रे, ले नफ़रिर, ले नफ़िर्रा, ले नफ़िर्रे। अभी क्या है, ऐनुल फेल पे फतह की मिसाल दे दी, ऐनुल फेल पे कसरे की मिसाल दे दी ये रही। अब ऐनुल फेल पे ज़म्मे की मिसाल दे रहे हैं। यमुद्दो, खींचता है या खींचेगा वो एक माद, यफ़अलु के वजन पे। अब देखिए इसमें 4 सूरतें बन गई। ले यमदुद, ले यमुद्दा, ले यमुद्दे, ले यमुद्दो, ले यमुद्दा, ले यमुद्दू, ले तमदुद, ले तमुद्दा, ले तमुद्दे, ले तमुद्दो, फिर ले तमुद्दा, ले यमदुदना। फिर अम्र हाजिर पे आ जाइए उमदुद, मुद्दा, मुद्दे, मुद्दो, मुद्दा, मुद्दू, मुद्दी, उमदुदना। ले अमदुद, ले अमुद्दा, ले अमुद्दे, ले अमुद्दो, ले 14वां सीगा ले नमदुद हो जाएगा, ले नमुद्दा, ले नमुद्दे, ले नमुद्दो हो जाएगा। ये यहाँ पर एक छोटी सी एक बात कही उन्होंने, तबसरा। यहाँ पे एक तबसरा कर रहे हैं, ये बता रहे हैं आपको कि माद्दा अल हयात, माद्दा है ये अल हयात और अल आई, ये जो 2 माद्दे हैं ना, अल हयात और अल आई। हयात यानी जिंदा होना और आई यानी आजिज होना। हयात को हैया है ना, ये हैया और अय्या, एक सूरत से तो ये 2 मुज़ाफ हैं दोनों, क्योंकि ये दो एक जैसे हर्फ हैं, हैया और अय्या में भी 2 एक जैसे हर्फ एक जगह हैं, और ये लफीफ भी तो हैं, या हर्फ इल्लत है नहीं है जी, 2 हर्फ इल्लत है नहीं या, तो 2 हर्फ इल्लत भी हैं। तो ये कह रहे हैं इन जैसे जितने भी माद्दे हैं, हयात और अल आई और अमसालियान और इन जैसे और जितने भी माद्दे हैं, ये हम मुज़ाफ़न व हम लफीफ, ये मुज़ाफ़ भी हैं क्योंकि 2 एक जैसे हर्फ हैं, और ये लफीफ भी है क्योंकि 2 हर्फ इल्लत हर्फ असली की जगह है और एक जगह है। बिनाबरीन इसलिए हुक्म हर दोरा मीतवान दर आना जारी कर, लिहाजा आपको इख्तियार है कि इसमें दोनों के कायदे जारी कर सकते हैं। आप कहें नहीं मुझे तो मुज़ाफ़ का कायदा जारी करना, तो कोई बात नहीं, कहिए हैया हैया हय्यू, हय्यत हय्यता मसलन ऐसे कर लीजिए, या कहिए नहीं मैं तो लफीफ का जारी करूंगी, मसलन हय्या हय्या हयू, हय्यू था नहीं है, यहया मुदारे क्या आएगा, यहयो था ना, कायदा जारी कर दीजिए एलान का यहया नाकिस वाला, क्योंकि आपको याद है कि लफीफ मकरून में ऐसा मान लिया जाएगा, नाकिस के कायदे जारी होते हैं, ऐनुल फेल को ये मान लेंगे कि हर्फ इल्लत है ही नहीं, वो समझ लीजिए एक तरह से। समझ में आई बात या नहीं? याद है पीछे नहीं क्या, अगर ऐनुल फेल लामुल फेल यानी लफीफ मकरून है तो नाकिस के कायदे जारी होंगे, मोतल के जारी, उसके अजवफ के जारी नहीं होंगे। फर्ज ये होगा कि ऐनुल फेल हर्फ इल्लत है ही नहीं मसलन, लेकिन लफीफ मफरूक में ये कहा था कि क्योंकि फाउल फेल की जगह भी हर्फ इल्लत है तो मिसाल है, लामुल फेल की जगह हर्फ इल्लत है तो वो नाकिस है, लिहाजा दोनों के कायदे जारी हुए थे। इसलिए तो क़े बजाता अम्र हाजिर वक़ायक़ी से क़े, क्योंकि फाउल फेल हस्फ हो गया था मिसाल के कायदे की वजह से, और लामुल फेल जारी हस्फ हो गया था नाकिस के कायदे की वजह से, इसलिए क़े बचा था बेचारा बीच का। लेकिन से लफीफ मकरून में ये कहा था कि ऐनुल फेल को गोया ये मान फर्ज कर लेंगे कि वो हर्फ इल्लत है ही नहीं, बस नाकिस नाकिस का जारी कर लेंगे। तो यहाँ पर अल हयात और अल आई इस जैसे और मादे जितने भी हैं, लफीफ भी हैं और मुज़ाफ़ भी हैं, तो आप मुज़ाफ़ का कायदा भी जारी कर सकते हैं। आप कहिए हय्या हय्या हय्यू, या नाकिस का जारी कर लीजिए आप, यहया यहया ने यहयौना लियहया
लियहया लियहयो, या हय्या हय्या हय्यू मुजाफ का जारी कर लीजिए, या हय्यो या हय्या ने या हय्यूना। और अम्र हाजिर में जब अम्र में आएंगे लियहया लियहय लियहया यहया लियहये, तो आप इसमें आपको इख्तियार है, मुजाफ का जारी करके आप गर्दान कर लीजिए, चाहे नाकिस का मोतल का जारी करके। वहाँ मिन तो, और इसी तरीके से मादा है दीगर अजीन कबील, और दूसरे मादे अजीन कबील, कबीले ने खानदान, इस खानदान के और जितने भी मादे हैं यानी इस जैसे, जिनका ऐनुल फ़िल लामुल फ़िल एक जैसा हो और वो हर्फ इल्लत हो। फिर कह रहे हैं दर बाजी अस्सीग़हा, ये चनी नफाली बास इस जैसे अफ़आल के बाद सीगों में कुछ चेंजिंग पेश आती है कि जहतान के जिसकी जहत को दर फसला आइंदा ख़ास, वो उसके बारे में आइंदा फसलों में बताएंगे इंशाअल्लाह। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। कल को इसकी तमरीनें देख के आइएगा इंशाअल्लाह, फिर महमूद शुरू करते हैं।